فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد 2 لاکھ نوکریاں پر تقررات کا وعدہ کیا تھا۔ میگا ڈی ایس سی اور دیگر نوکریوں کے لیے عمر کی حد میں مزید 2 سال کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ موجودہ بالائی عمر کی حد 44 سال سے بڑھا کر 46 سال کر دی گئی ہے، لیکن محکمہ پولیس کی نوکریاں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری نے ایک جیو بھی جاری کیا ہے۔ حیدرآباد میں اربن لینڈ سیلنگ میں فاضل قرار کردہ اراضیات پر اکثر قابضین نے اپنے مکانات تعمیر کروا لیے ہیں اور تقریباً 30 سال سے وہیں مقیم رہ کر پراپرٹی ٹیکس بھی ادا کر رہے، لیکن گورنمنٹ ان کے حق ملکیت کو تسلیم نہیں کر رہی اور بھاری قیمت کے عوض قبضہ جات کو باقاعدہ بنانے کا گورنمنٹ آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے اور کئی ایک حضرات نے اپنی درخواستیں ماہ فیس بھی ادا کر دی ہیں، لیکن آج تک کسی کی بھی درخواست پر عمل درآمد نہیں ہوا اور ساری درخواستیں معرض التوا میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری رائے میں اور قانون کی نظر میں فاضل اراضیات پر جو 23 مارچ 2008 کی تاریخ سے قابض ہیں اور اس کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہو تو درخواست پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایسی اراضیات کے وہ خود قانونی مالک ہیں۔ 1976 کا قانون 1999 میں منسوخ ہوا، یعنی جو قابض ہے وہی مالک ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں اگر حکومت نے ایسی اراضی کا مکمل قبضہ حاصل کر لیا ہو، یعنی فزیکل پوزیشن حاصل کر لیا ہو، تو ایسی اراضی حکومتی ملکیت قرار دی جائے۔ دوسری جانب اگر 23 مارچ 2008 کی تاریخ سے پہلے ہی سے قابض ہے اور اس کے پاس دستاویزی ثبوت مثلاً بیع نامہ رجسٹر شدہ یا نوٹری، مکان ٹیکس رسید، آدھار کارڈ، الیکٹرک یا ٹیلی فون بل، ووٹرز لسٹ میں نام کا اندراج ہو تو اسے ہی مالک قرار دیا جائے گا اور حکومت کو اسے بے دخل کرنے یا اس کی قیمت حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ 23 مارچ 2008 کی تاریخ اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہے کہ اسی تاریخ کو حکومت آندھرا پردیش نے 1999 کے منسوخ شدہ قانون کو تسلیم کر لیا تھا۔ ایک تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے اس صورت کو بالکل واضح کر دیا ہے اور NILE لمیٹڈ کیس میں ہائی کورٹ نے حکومت کے رقمی مطالبے کو مسترد کر دیا، کیونکہ 23,560 مربع میٹر اراضی کو فاضل قرار دیا گیا تھا، لیکن 23 مارچ 2008 سے قبل ہی یہ کمپنی اپنا کام کر رہی تھی، یعنی حکومت نے اس اراضی کا ایکچوئل فزیکل پوزیشن حاصل نہیں کیا تھا۔ اس مقدمے میں حکومت کی ہار ہوئی۔ ہماری رائے میں درخواستیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ہائی کورٹ میں ری درخواست داخل کر کے قبضہ جات کی باقاعدگی کے احکامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے جینکو کا تحریری امتحان ملتوی کر دیا ہے۔ جینکو امتحانات جو 17 فروری کو منعقد شدنی تھے ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ مختلف تنظیموں اور حکومت کے مقابلہ جاتی امتحانات کی وجہ بہت سے بے روزگار لوگوں نے حکومت سے جینکو تحریری امتحان ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ امیدواروں کی درخواست پر حکومت نے مثبت جواب دیا اور جینکو امتحان کو ملتوی کر دیا گیا۔ امتحان کی بہت جلد نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ کمپنی کے ویب سائٹ پر تفصیلات سے واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے جنرل سیکریٹری نارا لوکیش نے ضلع سریکاکولم کے اچاپورم سے اپنے سیاسی دورہ کا آغاز کیا اور ان کے سیاسی دورے میں 120 حلقہ جات کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس سیاسی ٹور کا مقصد عوام اور پارٹی کیڈر تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سیاسی دورے کو شنکھاراؤ وارم کا نام دیا گیا ہے۔ لوکیش کا یہ دورہ وہاں سے شروع ہوگا جہاں انہوں نے اپنی 3132 کلومیٹر طویل یووا گلم پد یاترا ختم کی تھی۔ اس دورے کے دوران وہ عوام میں TDP کی مستقبل کی اسکیمات سے متعلق شعور بیدار کریں گے اور پارٹی کے ان ورکرز کو تہنیت پیش کریں گے جنہوں نے بنیادی سطح سے پارٹی کے استحکام کے لیے کام کیا ہے۔
इन दिनों बाइक टैक्सी की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा। लोग ट्रैफिक में जल्द से जल्द अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज दफा रैपिडो चलाने वालों की मजबूरियों को देखकर कुछ लोग हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन हैदराबाद में पेश आए एक अजीब और गरीब वाक़े में ग्राहक ने पेट्रोल खत्म होने पर बाइक से उतरने से ही इनकार कर दिया। शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने रैपिडो बुक करवाई। रास्ते में अचानक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई। रैपिडो ड्राइवर ने ग्राहक से गाड़ी से उतरने और पेट्रोल पंप तक पैदल चलने की ख्वाहिश की, जिस पर ग्राहक ने इनकार कर दिया, जिस पर ड्राइवर के सामने अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आखिरकार रैपिडो ड्राइविंग ग्राहक को बाइक पर बिठाकर गाड़ी को ढकेलता हुआ पेट्रोल पंप तक पहुंचा। सड़क से गुजरने वाले बाज अफराद ने इस मंजर की वीडियोग्राफी कर ली और ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तेलंगाना में राज्यसभा की 3 नशस्तों के लिए पर्चे-ए-जात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा बीआरएस हलकों में इस बात पर बेचैनी पाई जाती है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस में इनहराफ के जरिए राज्यसभा की तीनों नशस्तों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। हालिया अरसे में बीआरएस के कई अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और बाद में उसे खैर सुगाली मुलाकात करार दिया। 2014 और 2018 में जिस केसीआर ने कांग्रेस अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल किया था, इसका बदला लेने रेवंत रेड्डी बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में फूट पैदा करने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। अगरचे अभी तक किसी रुकन असम्बली ने बाकायदा शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन कांग्रेस की जानिब से 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाने पर क्रॉस वोटिंग का अंदेशा बरकरार है। असम्बली में अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस को 2 और बीआरएस को 1 नशस्त हासिल हो सकती है। बीआरएस में क्रॉस वोटिंग के अंदेशे 15 फरवरी तक जारी रह सकते हैं, जो पर्चे नामजदगी अदखाल की आखिरी तारीख है। कांग्रेस ने अभी तक राज्यसभा इलेक्शन के बारे में अपनी हिकमत अमली तय नहीं की है। कांग्रेस के बाज़ गोशों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से कबल बीआरएस अरकान असम्बली के इनहराफ की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे अवामी गलत पैगाम जा सकता है। रेवंत रेड्डी के करीबी कायदीन का मानना है कि बीआरएस को कमजोर करने राज्यसभा इलेक्शन बेहतर मौका साबित होगा। बीआरएस की नजरें कांग्रेस की हिकमत अमली पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस कायदीन का दावा है कि 20 से जायद बीआरएस अरकान कांग्रेस से राब्ते में हैं। यही दावा बीआरएस क़यादत को परेशान किए हुए है। मौसमी गर्मा में आग लगने के वाकयात के पेश नज़र अवाम को चौकस रहने का फायर ऑफिसर्स ने मशवरा दिया है। बड़े अपार्टमेंट्स में आग लगने की सूरत में की जाने वाली एहतियात के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा। हैदराबाद डिविजनल फायर ऑफिसर नवाज रेड्डी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि मौसम गर्मा की शिद्दत के सबब आग लगने के वाकयात जायद होने के इम्कान है। गर्मा में बिजली के आलात जायद इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके सबब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट का भी खदशा लगा रहता है और आग लगने के वाकयात में इजाफे का इम्कान होता है। मकानात के करीब कचरा जलाने या नुकसान वाले केमिकल्स के भी जायद इस्तेमाल से आग लगने के वाकयात पेश आते हैं। उन्होंने कहा है कि मामूल के मुआयनों के दौरान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, मल्टीप्लेक्स और अस्पतालों की इमारतों के जिम्मेदारों में शऊर बेदार किया जा रहा। सेलार्स को सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा। उनका इस्तेमाल चार्जिंग स्टेशंस के तौर पर ना करने की ख्वाहिश की जा रही। साथ ही खतरनाक केमिकल्स को रिहायशी अपार्टमेंट्स में ना रखने पर भी जोर दिया जा रहा। ये केमिकल्स और एसिड से जल्द आग लगती है, जो तेजी के साथ फैलती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के कारनामों को तहनीत पेश करने बेंगलुरु में हजारों अफराद अपने पेटों पर लटके प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा करने ऑनलाइन वीडियो एल्बम जारी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के फैसले को निंदा ने बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हामिल करार दिया है, जिसने इतना तवील तरीन ऑनलाइन वीडियो एल्बम तैयार किया। एक सरकारी बयान में ये बात बताई गई है कि इस प्रोग्राम में 5194 वीडियो अपलोड किए गए, जिनमें जिंदगी की तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। इसके अलावा यहाँ पर बजाज अलायंस लाइफ ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अहम कारकुनों, जिनमें चंद्रयान और सोलार मिशन आदित्य L1 की कामयाबी के लिए बेंगलुरु के श्री कंटेरवा आउटडोर स्टेडियम में जश्न मनाने चौथा प्लैंकाथॉन मुनक्किद किया था।
राज्य सभा में बीआरएस कायद डॉक्टर के केशव राव ने कहा है कि बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर पर सियासत कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने राम के नाम पर सियासी मकासद की तकमील में मसरूफ है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए पार्लियामेंट में अयोध्या पर बहस कराते हुए एक करारदाद मंजूर की गई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर पर पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करना गलत था। केशव राव ने इस इक़दाम की मुखालिफत करते हुए कहा कि राम मंदिर पर सियासत की जा रही क्योंकि पार्लियामेंट इंतखाबात करीब है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अयोध्या मंदिर नहीं गए या नहीं जा रहे हैं वो मुल्क दुश्मन नहीं है। उन्होंने मोदी की जानिब से बार बार अयोध्या मंदिर की बात करने पर तंज करते हुए कहा है कि यदाद्री भुवनगिर में तेलंगाना का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन मोदी ने एक बार भी यदाद्री मंदिर की बात नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो रावण की मंदिर जाएंगे। केशव राव ने कुछ दिन कबल बीआरएस कायद वेंकटेश नेता के बीआरएस से इस्तीफा और कांग्रेस में शमूलियत पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कायदीन अपनी जरूरियात और नजरियात के मुताबिक पार्टी तब्दील करते रहते हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐवान में हुकूमत के तई एतमाद का वोट हासिल कर लिया। बिहार असम्बली में फ्लोर टेस्ट से कबल बरसर इख्तदार तबका और हिज़्ब मुखालिफ तबके के लीडरान की जोरदार तकरीरें हुई। फिर जब फ्लोर टेस्ट का वक्त आया तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने अपोजिशन से गुजारिश की कि वो वोटिंग में हिस्सा ले, लेकिन अपोजिशन के सभी अराकीन ऐवान से बाहर निकल गए। फिर जब वोटिंग हुई तो नीतीश हुकूमत की हिमायत में 129 वोट पड़े। चूंकि अपोजिशन ने मुकम्मल वॉकआउट कर दिया था, इसलिए नीतीश हुकूमत के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। फ्लोर टेस्ट से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से हमें जनता दल यू बीजेपी काम करने का मौका मिला। 18वां साल है, दरमियान में कुछ महीने आपको आरजेडी दिया था। हमसे पहले उनके तेजस्वी के माँ बाप को 15 साल तक काम करने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया? कोई सड़क था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, हमने बंद कराया। शाम में लोग निकलने से डरते थे, अब देर रात तक मीटिंगें होती हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, सब दिन के लिए आ गए हैं। फिर वो कहते हैं हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सभी के मुफाद में काम करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए एलामिया की इजराई आइंदा महीने के दूसरे हफ्ते में अमल में आएगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एलामिया की इजराई आइंदा महीने अमल में लाई जा सकती है। 2019 के आम इंतखाबात के तर्ज पर 2024 आम इंतखाबात के मरहलावार अंदाज में रायदही का इम्कान है। आम इंतखाबात से कबल तैयारियों का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन से मुल्क की तमाम रियासतों का दौरा करके सूरत हाल से आगाही और तैयारियों के मुतालिक हिदायत जारी की जाती हैं और अब तक इलेक्शन कमीशन से महज आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क में किसी रियासत का दौरा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में कमीशन जिम्मेदारान ओडिशा का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के बाद जनूबी रियासतों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के बाद बिहार, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश का दौरा किया जाना है। इलेक्शन कमीशन के इन दौरों के बाद कहा जा रहा है कि कमीशन के सरबराह और अराकीन जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख का भी दौरा करने के बाद आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को देखते हुए ये कहा जा रहा कि माह मार्च के वसत से मुल्क भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाएगा और माह मई के अवाइल तक इंतखाबी सरगर्मियों को मुकम्मल करने इक़दाम किए जा रहे। जराये के मुताबिक कमीशन ने फैसला किया कि बेशतर रियासतों के दौरे के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल मरकजी वज़ारत दाखिला ओहदेदारों से मुलाकात करके आगाही हासिल की जाएगी।
मरकजी मुमलिकती वज़ीर इत्तलात व नशरियात व समकियात डॉक्टर एल मुर्गन ने कहा है कि रोजगार मेला मुलाजिमत पैदा करने और तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए 2047 के मिशन के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वादे की तकमील की सिमत एक कदम है। उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद में मुलाजिमत पाने वालों से खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मानना है कि आइंदा 25 सालों में हिंदुस्तान को एक आलमी ताकत बनाने में नौजवानों का अहम रोल है। इस पर वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मरकज ने अब तक पीएम रोजगार योजना प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमों और अवामी इदारों में 9 लाख से ज्यादा मुलाजिमतें फराहम की हैं, जिसके तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। मुर्गन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कीमों को समाज के आखिरी आदमी तक ले जाने का विजन रखें। वज़ारत हज व उमरा ने दाखिली आज़मीन हज के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो हज करने की अहलियत रखते हैं वो वज़ारत की वेबसाइट या नुस्ख ऐप के जरिए अंदराज करा सकते हैं। वज़ारत हज व उमरा ने इस साल दाखिली आज़मीन हज के लिए 4 पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं। दाखिली आज़मीन हज के लिए सबसे सस्ता पैकेज 4099.75 रियाल का है, जिसमें वॉट शामिल है। दूसरा वॉट समेत हज पैकेज 8092.55 रियाल का है और तीसरा पैकेज 10,366.10 रियाल का है, जिसमें आज़मीन को जदीद खैमों में रिहाइश के साथ लग्जरी सर्विस फराहम की जाएगी। जबकि चौथा और आखिरी हज पैकेज वॉट समेत 13,265.25 रियाल है, जिसमें जुमरात पुल के करीब मिनी टावर में रिहाइश फराहम की जाएगी। दाखिली आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन के लिए शराइत सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रजिस्ट्रेशन की कुछ शराइत रखी गई हैं, जो इस तरह है। वज़ारत हज ने अपने एक पोस्ट पर तफसीलात जारी की हैं, जिसके तहत सऊदी शहरी का शनाख्ती कार्ड और अगर गैर मुल्की है तो उसका इकामा ज़िलहज्जा के आखिर तक कारआमद होना ज़रूरी है। वज़ारत का कहना है कि गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन मुकम्मल होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुतअद्दी मर्ज़ का शिकार ना हो और ला इलाज अमराज में से किसी में मुब्तला ना हो। हज पर जाने वाले की उम्र 15 साल से कम ना हो, जबकि उम्र का तयन हिजरी कैलेंडर से किया जाएगा। वज़ारत के मुताबिक पहली मरतबा हज का इरादा करने वाले पहली तरजीह होंगे। इस शर्त से हज का इरादा करने वाली ऐसी खातून का महरम मुस्तशना होगा जिसने पहले कभी हज ना किया हो या पहले हज पर 5 साल हो चुके हों। वज़ारत हज का कहना है कि इनफरादी ग्रुप में शामिल अफराद की इंतहाई हद 14 है। इससे ज्यादा अफराद को एक ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।